یہ اس ملک کو کوئی اور راشٹر نہیں BJP راشٹر بنانا چاہتے ہیں. جو کچھ ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندو راشٹر کے نام پہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہندو راشٹر بنے گا، شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ہندو راشٹر نہیں بنانے والے، یہ BJP راشٹر بنا رہے ہیں. اسی لیے یہ ہر جگہ جو ہے اسمبلیاں توڑ کے، گورنمنٹیں توڑ کے اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں، اور جموں کشمیر میں یہ جو اس وقت کر رہے ہیں وہ بھی اسی کڑی کا حصہ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جموں کشمیر میں، پورے ملک میں، مگر خاص کر یہ جو انہوں نے لیٹسٹ آن سلاٹ کیا ہمارے حقوق پہ، اس کے لیے تمام جماعتوں کو میں اپیل کروں گی کہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مل کے لڑنا چاہیے. السلام علیکم، آداب ناظرین. شوم چینل ٹوڈا سے میں آپ کا میزبان ادریس فلاحی ایک بڑی خبر لے کر آپ سب لوگوں کی جانب پھر سے ایک بار حاضر ہو رہا ہوں. آپ سب لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا خبر مسلسل کے حوالے سے. جس طریقے سے کل میں نے آپ کو لائیو نشریات کے حوالے سے اس بات کے حوالے سے گوش گزار کرایا تھا کہ جموں کشمیر کے اندر اس بار کے انتخابات میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب نئے ووٹرز کی شمولیت ہوگی. اس پر جس طریقے سے میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کی علاقائی یا جو ریجنل پارٹیز ہیں انہوں نے مختلف طریقے سے اس تمام معاملے کی مذمت پیش کی تھی، اور آج سابقہ وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر اور PDP کے رہنما محبوبہ مفتی کے ذریعے سے پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایک بڑا بیان اور بڑا خلاصہ سامنے نکل کر آ رہا ہے. اور انہوں نے یہ بات بھی کہیں نہ کہیں بتائی کہ اس کا نتیجہ جو ہے کہیں نہ کہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کو ہی ہوگا، اور انہوں نے خاص طور پر نشانہ سادھنے کی کوشش کی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس طریقے سے نیشنل کانفرنس کے رہنما ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اور ان کے جتنے بھی دیگر عملہ ہیں ان لوگوں کو بھی اس حوالے سے بات چیت کر کے انہوں نے بتایا ہے کہیں نہ کہیں وہ میٹنگ کرنے والے اس حوالے سے کہ آخر علاقائی اور وفاقی جتنی بھی پارٹیز ہیں اب ان کے بیچ کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں ایک بہت بڑا خلاصہ نکل کر کے سامنے آنے والا ہے. اور آئندہ آنے والے انتخابات میں اب بہت ہی بڑی ایک پیشکش دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ جموں کشمیر میں دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد پہلی بار اس طریقے کی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں اب اتنے زیادہ لوگ پھر سے جموں کشمیر کے انتخابات میں شرکت کر کے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. آج محبوبہ مفتی سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر کے ذریعے سے پریس کانفرنس کے ذریعے سے جو بیانات سامنے آئے ہیں، آپ کی نظر یہ خاص رپورٹ. ہاں جی، السلام علیکم آپ سب کو میری طرف سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل جو چیف الیکشن آفیسر ہیں انہوں نے ایک نیا فرمان جاری کیا، اور جس کی وجہ سے جو ہے BJP کے 25 لاکھ جو نان لوکلز ہیں ووٹرز ان کو یہاں انکلوڈ کیا جائے گا. اینڈ آئی تھنک دس از دا لاسٹ نیل ان دا کافن آف الیکٹورل ڈیموکریسی ہے. پہلے جو انہوں نے ریگنگ کرنی تھی وہ تو آدھی ریگنگ کر دی جس وقت ڈیلیمیٹیشن کمیشن یہاں بنایا، اور اس میں جتنی جیری مینڈرنگ ہونی تھی وہ سب کر لیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی ہیڈ کرتی تھی اس پینل کو، اس کو اب بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیٹ کیا گیا. شی ہیز بین ریوارڈڈ. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، میں لوگوں کے اپنے ملک کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جمہوری نظام کو یہاں مسخ کیا جا رہا ہے، ڈیموکریسی کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے، یا ملک کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جموں کشمیر ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا یہ سوچ کے کہ ہم جمہوری ملک کا حصہ بنیں گے، راجہ مہاراجاؤں کی تاناشاہی ختم کر کے ہم ایک آزاد ہندوستان، ایک ڈیموکریٹک سیکولر ہندوستان کا حصہ بنیں گے. مگر اس کے بعد جبکہ پورے ملک میں ڈیموکریسی ہوئی، ہمارے یہاں ایسے کچھ واقعات ہو گئے ان ڈیموکریٹک طریقے سے، جیسے شیخ صاحب کو ڈسمس کیا گیا. اس کے بعد کئی ایسی چیزیں کی گئی کہ لوگوں کا الیکشن سے یہاں بالکل بھروسہ اٹھ گیا، کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی الیکشن ہو گئے اس میں میجورٹی آف دا الیکشنز میں جو ایک ون سائیڈڈ ہوتا تھا جس کے لوگوں کا بھروسہ نہیں تھا. اور 87 واز دا کلمنیشن آف آل دا الیکشنز، فراڈس آف الیکشنز، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں نے جو بہت ہی امن پسند لوگ ہیں انہوں نے بندوق اٹھانے پہ مجبور ہو گئے، اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹل بہاری واجپئی صاحب کو
रेड फोर्ट से ये ऐलान करना पड़ा 2002 में उनको ये ऐलान करना पड़ा कि हम जम्मू कश्मीर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, और उसके बाद इलेक्शन में बेहतरी आई और जम्मू कश्मीर के लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में एक भरोसा हो गया। मगर जो हम आज देखते हैं, जो इस वक्त हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी बन चुका है बीजेपी के लिए। यहाँ वो तजुर्बा करते हैं, उसके बाद बाहर जाके उसको अप्लाई करते हैं, और जितना भी जो भी कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये इस फसाड में हो रहा है कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा का हिस्सा बनाना चाहते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं कंट्री के साथ। तो मेरा तो ये है कि जो भी हमारे लोग, मुल्क के लोग जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि मैं उन पार्टीज की भी बात कर रही हूँ जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क को जमहूरी सेकुलर मुल्क बनाया। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी, अंग्रेजों के साथ मिल के रहे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। मैं उन हिंदुस्तानियों से कहना चाहती हूँ कि आप समझिए, बीजेपी आपको हर गलत काम, कॉन्स्टिट्यूशन को मलियामेट करके उसको भी नेशनलिज्म का नाम देती है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, ये सब वो कह रही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट में करें। कुछ भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, सब कुछ बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में हो रहा है। इन्होंने 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से 370 हटाया, 35 से हटाया, स्पेशल पोजीशन हमारी खत्म की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया और ये बताया आप लोगों को कि ये जरूरी है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है। ये सब बीजेपी के अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि उसके बाद हर इलेक्शन में इन्होंने जम्मू कश्मीर के प्लाट बेचना शुरू कर दिया इलेक्शन में कि आपको प्लाट मिलेगा, हमने जम्मू कश्मीर में ये किया। और आज जो जम्मू कश्मीर एक तजुर्बा गांव बन चुका है पूरे मुल्क के लिए, आज न सिर्फ जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी खतरे में है, बल्कि अगर आप देखेंगे ये रिगिंग का जो सिलसिला है ये पूरे मुल्क में है। अब फर्क ये है कि कई स्टेट्स में रिगिंग इलेक्शन के दौरान होती है, जिसमें एलिगेशंस लगते हैं, ईवीएम्स को इस्तेमाल किया जाता है, पैसे को इस्तेमाल किया जाता है, मसल पावर इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा हिस्सा आपने देखा इलेक्शन के बाद किस तरह रिगिंग होती है, उस गोवा में देखा आपने, कर्नाटक में देखा आपने, मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में हाल ही में देखा, और अभी झारखंड और राजस्थान लाइन में लगे हैं, जहां ये पैसे के बलबूते पे, पावर के बलबूते पे, और खासकर ईडी जो इनका अकलौता अलायंस पार्टनर है, उसके बलबूते पे रिगिंग करते हैं और रिजल्ट अपने हक में कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लोगों को एक हिसाब से डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जब 25 लाख बीजेपी का वोटर बाहर से आएगा तो जम्मू के वोट का क्या फायदा होगा, कश्मीर के वोट का क्या फायदा होगा। तो इसी तरह मैं मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूं कि जब आप किसी को चुनते हैं, उसके बाद ये पैसा और ईडी का इस्तेमाल करके उस सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाते हैं, तो बीजेपी का एक ही मकसद है, किसी तरीके से हर जगह बीजेपी की सरकार बने। और जो जम्मू कश्मीर वो अब करना चाहते हैं, वो भी इसलिए है कि वो किसी लोकल, ऐसा करें कि जो कोई फासिस्ट लोकल होगा यहाँ, उसको रूलर बना के इस फ्रॉड इलेक्शन के जरिए उसको यहाँ तैनात करें, ताकि जो इन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल हो गए इनको डायरेक्टली यहाँ रूल करते हुए, मगर उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों का जो उनका रिजॉल्व है, जो साइलेंट और पीसफुल उनका तरीका है रेजिस्ट करने का, उस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सके। अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से चोर दरवाजे से इलेक्शन में 25 लाख बीजेपी के वोटर बाहर से लाके, इस दरवाजे से उस दरवाजे से लाके ये यहाँ किसी फासिस्ट को बिठा दें कुर्सी पे, ताकि यहाँ जो हमने पहले शुरू से ही कहा है कि यहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस करना चाहते हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, ये जम्मू के डोगरे के लिए भी है, ये यहाँ के पंडित के लिए भी है। और मैं इसमें आपको ये बताना चाहती हूँ, कश्मीरी पंडित जिनके लिए ये हाय हाय तौबा करते रहते हैं हर वक्त, पिछले 32 साल से चिल्ला रहे हैं कि हमें वोट देने में आसानी कर लीजिए,
उनको 4-5 फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, तब जाके वो वोट देते हैं। अब उन्होंने वोट देना भी बंद कर दिया क्योंकि उसमें इतनी मुश्किलात है। उनके लिए आसानी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आज तक आसानी नहीं की कि वो कैसे वोट डालें, जिनके तकलीफ को इन्होंने अपना हथियार बना के पूरे मुल्क में बेच के खाया है। उनके लिए ये सहूलियत नहीं है, मगर अपने लिए ये सहूलियत करना चाहते हैं। मुल्क को समझना चाहिए ये कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, वो बीजेपी की जो पॉलिसी अपनाना चाहती है। बीजेपी यहाँ पर जो नाजी जर्मनी में पॉलिसी थी, जो इजराइल में पॉलिसी है, वो सोचते हैं ये पॉलिसी अपना के हम जम्मू कश्मीर के मसले को हल करेंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बना के पूरे मुल्क के अंदर उसी बलबूते पे और लोगों से वोट मांगेंगे। और इसके अलावा बीजेपी का कोई इरादा नहीं है। मगर मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने कितना जुल्म किया पर ज्यूस को वो खत्म नहीं कर सका। इसराइल कितना भी जुल्म करे तो फलस्तीन को खत्म नहीं कर सकता, ना उनके रिजॉल्व को खत्म कर सकता है। इसी तरह जब तक एक डोगरा, एक कश्मीरी यहाँ बचा हुआ है, तो वो जो बीजेपी के इविल डिजाइन्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, वो उनको कामयाब नहीं होंगे, बल्कि उनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जो वो हालात बना रहे हैं, एक तरफ से वो डी रेडिकलाइजेशन पे सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ से वो हर हरकत वो ऐसी करते हैं जिससे यहाँ के नौजवान रेडिकलाइज हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि पहले ही आपने 2019 में जो कांड किया, उसके बाद आप वहां नहीं रुके। उसके बाद आपने यहाँ के नौजवानों से उनकी जमीन छीनी, उनका रोजगार छीना, उनके रिसोर्सेज छीने, उनकी आजादी छीनी, उनकी डिग्निटी छीनी, उनको जेलों में डाल दिया, उनका जीना हराम कर दिया। और अब एक उनके पास वोट का हक था कि वोट डाल के वो अपनी पसंद की हुकूमत चुनते, अपने पसंद का रिप्रेजेंटेटिव चुनते। आप उसमें भी उनको इनडायरेक्टली डिफ्रेंचाइज कर रहे हैं, उनके वोट का होना ना होना बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। और आपने जो बर्बादी की है जम्मू कश्मीर की, उसमें यह भी हो गया है कि जो आज तक हमारे कश्मीरी पंडित भाई थे, जो पिछले 30 साल से यहाँ आराम से रह रहे थे, अब वो भी टारगेट हो रहे हैं। और पिछले कई महीनों से वो इस वक्त जो है एहतजाज कर रहे हैं। और आप कहते हैं उनको कि थप्पड़ पड़ेगा अगर आप अंदर नहीं जाओगे। ये इनका तरीक़ेकार है जो ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। और वो समझते हैं कि वो यहाँ की ग्राउंड रियलिटी चेंज करेंगे। ग्राउंड रियलिटी चेंज नहीं होगी। आपको जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान आज भी ढूंढना होगा, कल भी ढूंढना होगा। मगर मैं फिर से अपने मुल्क के लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, उनको गुजारिश करना चाहती हूँ। देखिए, बीजेपी जो उन्होंने तरीकेकार अपनाया है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को, मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का, इन्होंने उससे खाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं छीना, हमारा झंडा नहीं छीना। अगली बारी आपकी है। 2019 के बाद 370 हमसे छीना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छीना, हमारा झंडा छीना, गैर आईनी तरीके से। अगर इनमें हिम्मत होती तो असेंबली के जरिए ये करना चाहिए था, मैं उसको लीगल मानती। मगर गैर आईनी तरीके से चोर दरवाजे की आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन के बाद ये इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको भी खत्म करेंगे और जो मुल्क का झंडा है उसको भगवा झंडे में लहरा देंगे। और उस वक्त फिर आप सोचोगे कि ये क्या हो गया। ये इस मुल्क को कोई और राष्ट्र नहीं, बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो कुछ हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे बड़े खुश हो जाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, शायद उनको अंदाजा नहीं है कि कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनाने वाले, ये बीजेपी राष्ट्र बना रहे हैं। इसीलिए ये हर जगह जो है असेंबलियां तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। और मैं समझती हूं कि मैं बार बार कहती हूं कि हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए जम्मू कश्मीर में, पूरे मुल्क में, मगर खासकर ये जो इन्होंने लेटेस्ट ऑन स्लॉट किया हमारे हक हुकूक पे, उसके लिए तमाम जमातों को मैं
अपील करूंगी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए और इसके खिलाफ मिल के लड़ना चाहिए। देखिए, अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है, जो पार्टी इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी ये सबक है। मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी। क्योंकि जो हमारे यहाँ बच्चे रेडिकलाइज हो जाएंगे, जो इस वक्त बंदूक उठा रहे हैं, ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में जा रहे हैं। हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी ये सुनील हमारा लड़का मारा गया, हमारे पुलिस के लोग मारे जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जाते हैं। हर एक खून की बूंद की कीमत बीजेपी मुल्क में वसूल करती है अपने इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए। क्योंकि जब पुलवामा में हमारे कई लोग शहीद हो गए तो उसके बारे में पूरे मुल्क में उन्होंने चर्चा की, मगर जब चाइना ने हमारे 20 नौजवान मार दिए गए, उनको शहीद किया, तो उस वक्त कोई आवाज़ नहीं निकली, क्योंकि उससे उनको इलेक्टोरल बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए जो कश्मीरी पंडित्स की पेन है, जो उनकी किलिंग है, टारगेट किलिंग है, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते हैं या कोई और मारा जाता है, उसको वो खून जो है वो बीजेपी के लिए आज वोटर के उसमें शक्ल में उसको मुआवजा मिलता है। तो ये इस वक्त इलेक्शन की बात नहीं, इट्स गॉन बियॉन्ड इलेक्शंस। मुझे लगता है कि हमारे तमाम पार्टीज को रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की तरफ बढ़ना चाहिए, और जब कश्मीर रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो तब बीजेपी को जो है उसको, जब सारी जमातें एक ही जैसा फैसला लेंगे तो मुझे लगता है कि आप बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं कि जो उन्होंने एक बहुत ही डेंजरस और इविल एक उन्होंने तरीके का डिज़ाइन अपनाया हुआ है, उनको वो चेंज करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल किया उन्होंने। मैंने फारूक साहब से इल्तिजा की है कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और उसमें हम डिस्कस करें कि हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो नाजरीन, फिलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल टोडा। आपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मजीद पेशिश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।